Good evening, everyone. Hi, everyone. Good evening. So, I'll just wait for a while to let more people join in. Hello. Hi, Shalini. Hi, Suresh. Ji. Hello. Good evening. Good evening, everyone. Hi, Dolly. Hello, Sugandha ji. Thanks, everyone. Thanks for watching. Hi, Parth ji. Hello. So, I'll just wait for a while to let more people join in. आज हम लोग कुछ वास्तु से रिलेटेड आई गिव यू सम डायरेक्शंस कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं उनको अगर लेके हम क्या डायरेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे. यस पार्थ जी, आई कैन यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. आई एम here to answer your queries. हम लोग so as I think you've joined it for the first time, I am Dr. Shalini Gugnani and I am a Vastu consultant, a numerologist and a tarot card reader. So generally in live sessions, I generally from last like in lockdown I started every Sunday live. So I come here on live FB live and यहाँ पे मैं आपके questions के जवाब देती हूँ, आपके करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड. जनरली हम टैरो रीडिंग करते हैं या न्यूमरोलॉजी से आंसर्स करते हैं या हम जनरली वास्तु के क्वेश्चंस रहते हैं. और उसके एज मैं यहाँ पे आपको लोग के लिए यहाँ पे जितनी देर लाइव रहती हूँ उतनी देर फ्री सेशन होता है, ये उतनी देर फ्री आंसर्स कर देती हूँ. सो आई ऑल्सो वॉन्ट अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड कि आप चाहते हैं मैं आप लोग के आंसर्स लूँ, आप लोग के क्वेश्चंस लूँ. तो आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एटलीस्ट 5 ग्रुप्स में जहाँ पे ग्रुप्स एक्सेप्ट करें वीडियो. और आप ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, फेसबुक ग्रुप्स में आपको शेयर करना है सो दैट कि आपके नाम के आगे शेयरर का बैच आए और आप के मैं क्वेश्चंस ले सकूं. सो आई विल ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन इन दिस आवर ऑफ लाइव सेशन. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले मेरे पेज पे जाके आपको इस पेज को लाइक करना है, दैट इज़ होलिस्टिक हैंड्स बाय डॉक्टर शालिनी गुगनानी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है. यस सुरेश जी, पार्थ जी, आई थिंक आप लोग शायद फर्स्ट टाइम इस लाइव में जुड़े हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं आप लोग के क्वेश्चंस यहाँ पे जल्दी ही लेती हूँ. लेट मी जस्ट forward this video on my page, on my personal profile, because I have question on my marriage life. Yes, Parji, I will surely answer your questions. अभी soon I'll be starting the question sessions. आप लोग को लिंक में मेरे पेज, आप लोग को कमेंट बॉक्स में मेरे पेज का लिंक मिल रहा है. सो प्लीज़ डू लाइक दिस पेज and do share this video as much as you can. The more you'll share this video, आपके नाम के आगे शेयरर का बैच आएगा and I'll surely take your questions. Thank you, Priyanka. Thank you so much for putting this link.
Okay, so I'll just soon, within a minute, I'll start answering your queries. So आज हम I'll focus on giving you queries on your health issues. और हम देखेंगे कि आपके कौन से डायरेक्शंस, वास्तु से आपकी कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपको हेल्थ इश्यूज से डिस्टर्ब करने में, आई मीन उनसे आपको जिससे आप बेनिफिट ले सकें. आई एम सॉरी फॉर दैट. हेलो धीरज जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो सचिन जी. I'm not able to share this video on my personal profile. Priyanka, can you help me in that? Is it possible? Sachin Shivaji, hello. Okay, Sachin ji, want to ask you about me? Yes, want to ask you. I want to switch my job. Yes, I'll just start with the questions. I'll be taking the questions. I'll surely answer your question. Okay. Yes, I'm just waiting. Okay, I'm done. Yes. So let me start with Mr. Thank you, Priyanka. Thank you so much for helping me out in this. Okay, Mr. Sachin. So please come up with your question. So I'm starting the questions now. Sugandha. Hi, Sugandha ji. Good evening. Thanks for watching. May I know suitable profession or business? I think you've given me your date of birth. So you D1, D9 and D9 charts. Okay, I will send you. Suresh ji, I need your date of birth for your this thing for answering your question. I don't know. I think you've mentioned about your chart, so that means maybe you're an astrologer or something. But I don't know what is your question. I'm sorry about that. But please do give me your date of birth so that I can answer your question. Parth S. Joshi, I have a question of my marriage life. क्या मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ शादी हो पाएगी, क्योंकि शादी के लिए मॉम पापा काफ़ी चिंता में हैं मेरी शादी के लिए. ओके, सो पार्थ जी, एज आई अंडरस्टैंड कि आप जहाँ मैरिज करना चाहते हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी. So is this the only question about what you want to understand? शादी के लिए मॉम पापा काफ़ी चिंता में है. So आप ये चाहते हो कि आपकी शादी आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ होगी कि नहीं होगी. पार्थ, आई वॉन्ट इट विल बी बेटर इफ यू गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज अभी मैं अगर कार्ड्स निकाल रही हूँ तो आपके लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ कि शायद आपके पेरेंट्स इस चीज़ को लेके ज़्यादा राज़ी हो पाएंगे कि जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपकी शादी हो पाए या नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशंस बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ आपके चीज़ें में कुछ ना कुछ मैं ये कहूँगी कि किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ तो आपकी मैरिज के इश्यूज आ रहे हैं. जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो पा रही हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू फॉर दिस, आप जब भी अपने पेरेंट्स से बात करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ जब डिस्कस करें, सो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट टेक
कुछ टर्कोइज कलर आप वहाँ पे रखें, मे बी टर्कोइज आप कुशंस या आप उस रूम का कलर जहाँ पे भी आप बैठ के उनसे डिस्कशन करें, और यू वेयर समथिंग इन टर्कोइज कलर एंड डू अ कम्युनिकेशन, और मे बी यू कैन वेयर अ टर्कोइज ब्रेसलेट और समथिंग एंड देन प्रोबेबली यू मेंशन व्हाट यू वांट टू स्पीक. सो आई होप वो ज़रूर आपकी बात समझेंगे. ओके, सो so next question है, can you want to Parth? Yes Parth ji, it will be better. वैसे I have answered your question, so I think now I don't require it. Hello Ramneek ji, thanks for watching. Hi Jitendra ji. Hello Ajay ji, thank you so much. Thanks all for watching and being here on this live session. I would really request everyone टू शेयर दिस वीडियो. आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. नवीना कनुगणित, ओके, आपका हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है. आई वुड रियली लाइक टू प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो फर्स्ट सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चंस. सचिन श्रीवास्तवा, इज दिस राइट टाइम? आपका क्वेश्चन, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ लिखें. आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जब भी अपना क्वेश्चन लिखते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन साथ साथ लिखें, सो दैट आपका क्वेश्चन कहीं एक मैसेज पे होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ किसी और मैसेज में होता है, तो मेरे लिए वो रिलेट करना इजी नहीं है यहाँ पे. हाय विभूति, थैंक्स फॉर वॉचिंग. पार्थ जी आप लिख रहे हैं कि मैम मॉम पापा चाहते हैं पर सामने से प्रॉब्लम है. जी हाँ, आई टोल्ड यू ना, सामने से कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस आ रहा है, कुछ ऐसी इश्यूज ज़रूर आ रहे हैं. तो आपको मैंने जो बताया कि आपको टर्कोइस यूज़ करना है, आप वो यूज़ करें और आप अपने पेरेंट्स से उस चीज़ के बारे में बात करें. और उसके अलावा आप फ्राइडे के दिन किसी गरीबों को वाइट चीज़ भी दान कर सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो रियली हेल्प यू इन दैट. ओके, सचिन श्रीवास्तव जी, 14th November 1984, कैन आई स्विच माई जॉब? राइट, आप इस तरह से प्लीज़ मुझे देंगे ना, जैसे आपका प्रिसाइज क्वेश्चन रहेगा, साथ ही के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो मेरे लिए आंसर करना ईजी रहेगा. So your question is, can I switch my job? I'll just take a card for you. Yes, Sachin ji, this is the right time. If you are thinking you can switch your job, if you are finding a better job on your way, and I hope you're really finding a better job and you can really switch your job. So अब मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड, अगर आपको हेल्थ से ज़्यादा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाय द टाइम आई विल डिस्कस दिस, आप तब तक अपने क्वेश्चंस रेडी रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आपको रेगुलरली स्टमक से रिलेटेड आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ स्टमक से, इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डू चेक योर ब्रह्मस्थान. हो सकता है आपके ब्रह्मस्थान में कोई पिलर, कोई बोरिंग या कोई बोरवेल हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे हैं. तो आप ये चीज़ें देखेंगे एंड दैट विल रियली आप वहाँ, और अगर आप देख रहे हैं कि आपको वहाँ पे ब्रह्मस्थान में इस तरह से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्प्रिंकल सम वाटर. आप पानी में थोड़ा सा केसर डालिए और आप अपने ब्रह्मस्थान में जाके उसको स्प्रिंकल करिए. सो दैट विल रियली हेल्प यू इन योर स्टमक रिलेटेड इश्यूज और एनी डिजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज. सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, अगर आपको लगता है आप बहुत हाई बीपी रहता है, इरेगुलर हार्ट रेट रहती है, बहुत ज़्यादा आप एकदम से हाइपर हो जाते हैं, आप
माइंड से रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, अननेसेसरी आप स्ट्रेस लिए रहते हो, या आपका बीपी जैसे मैंने बोला हाई रहता है, आपको नींद ठीक से नहीं आती है, तो जस्ट गो एंड चेक कि अगर आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण भी कहते हैं, अगर आपको डायरेक्शन सपोज नहीं पता है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो इन योर हाउस। आजकल कंपासेस जनरली हर फ़ोन में होते हैं। आप अपने घर में अपने घर के सेंटर में खड़े होकर, अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में, जहाँ पे भी आपको लगता है मेरे घर का ये सेंटर है, वहाँ पे आप कंपास लें एंड जस्ट सी के उस घर का नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। तो आप देखेंगे कि जिस साइड, अगर सपोज आपके लेफ्ट पे नॉर्थ है, आपके फ्रंट में ईस्ट है, तो दैट मीन्स द मिडिल डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इज योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखना है कि वहाँ पे अगर किचन रिलेटेड है, किचन है, या अगर आपने अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर कर रखा है, तो आप देखेंगे कि इस तरह की एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट बेसिकली अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप देख रहे हैं आपके घर में किचन है, या आपने बहुत रेड कलर अपने नॉर्थ ईस्ट में कर रखा है, तो रेड कलर को तो मैं कहूँगी कि हो सके तो प्लीज़ आप उसको चेंज करें और उसको लाइटर टोन्स में लेके आएँ। और अदरवाइज़ आप वहाँ पे मोगरा या जैस्मीन से रिलेटेड एसेंस आप वहाँ पे जला सकते हो। आप वहाँ पे अगरबत्ती फॉर्म में उसको जला सकते हो, या आप उसको एसेंस एज एन अरोमा बर्नर में आप उसको एसेंस के फॉर्म में दे सकते हो। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस और ले लेती हूँ। सचिन जी, वेयर इज ब्रह्मस्थान इन बॉडी? So central area is the Brahmastan in our body, which denotes the central area of our house. राहुल बंसल, आपका सवाल है, माई डेट ऑफ बर्थ इज 19/9/1987. शुड आई कंटिन्यू इन IT जॉब और स्टार्ट विद न्यू बिजनेस? व्हेन आई गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आप प्लीज़ एक एक करके क्वेश्चन पूछो तो बेटर रहता है, बट पहले मैं आपकी जॉब का क्वेश्चन आंसर दे दूं। आपको यू वांट टू नो कि आपको IT की जॉब्स कंटिन्यू करनी है या आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? ओके, एंड योर डेट ऑफ बर्थ इज 19/9/1987. यस राहुल जी, आप अगर कुछ बिजनेस से रिलेटेड करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, बट आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर से ध्यान देना है। आपको अपना ब्लैक कलर से परहेज रखना है। ट्राई अवॉइड वेयरिंग मैक्सिमम मोर ऑफ ब्लैक, मे बी आप ब्लैक लेदर, ब्लैक वॉलेट अगर रखते हैं या ब्लैक बेल्ट अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ब्लैक कलर को आप अवॉइड करें, तो आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नवीना जी, where is your question gone? ओके, सो लेट्स मी प्रोसीड फर्दर। तब तक मैं आपके और क्वेश्चंस आप रेडी करते हैं, मैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ अपने। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, या आपको मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लो बीपी की शिकायत हो रही है, जी हाँ, अगर इस तरह के आप इश्यूज फेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो। इफ यू थिंक कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, देन यू विल रियली फील कि आपका जो माइंड है, आप एक्चुअली जो चीज़ कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो थॉट प्रोसेस है, वो एग्जैक्टली आप उस तरीके से नहीं कर पाते हो। यू नो, इट डिस्टर्ब्स, इट डजंट हेल्प्स यू टेक वाइज डिसीजंस। जो जिस टाइम पे डिसीजंस लेने हैं वो उस टाइम पे वो डिसीजंस आप नहीं ले पाते हो। तो अगर ऐसा आप फेस कर रहे हो तो आपको वहाँ पे चंदन की अगरबत्ती का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज़ चंदन अरोमा एसेंस इन दैट जोन, जिससे कि आपको
स्ट्रेस और डिप्रेशन रिलेटेड अगर आप इस तरह के इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, आप मेंटल इलनेस से फेस कर रहे हैं, लो बीपी की अगर आपको शिकायत रहती है, तो जस्ट डू चेक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस. एज आई जस्ट मैंशन कि नॉर्थ ईस्ट में या तो टॉयलेट हो सकता है या बहुत ज़्यादा क्लटर अगर है वहाँ पे, तो इस तरह के इश्यूज आप फेस कर सकते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई सेंड माई डेट ऑफ बर्थ. जी पार जी, आप किस चीज़, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. So what do you want to know? So you can send your date of birth with your question again if you want any, if you have any other question. Hello Meenu ji, thanks for watching. So इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में हेडेक से रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहे हैं, सर्वाइकल से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टेयर्स हो सकती हैं. अगर वहाँ पे स्टेयर्स हैं या कोई स्टोरेज है, अगर आपने बहुत हैवी स्टोरेज रखा हुआ है, या वहाँ पे कोई आयरन का, जैसे स्टील का वार्डरोब या आयरन का वार्डरोब होता है, उस तरह की चीज़ें अगर रखी हैं, और डू चेक कि वहाँ पे अगर वहाँ पे जंग लगा हुआ है, तो हो सकता है आपको इस तरह की इश्यूज फेस करने को दिख सकते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट गो एंड प्लेस, उसको क्लियर तो करना ही है, उसके अलावा गो एंड प्लेस ग्रीन प्लांट्स इन दैट जोन विच विल रियली हेल्प यू गेट रिड आउट ऑफ दीज इश्यूज. सो राहुल जी, आप, when I get married and how will be my marriage? Rahul ji, you are a top fan, so I'm taking your question, but you haven't still shared this video, so do share this video in at least 5 different groups जहाँ पे ये एक्सेप्ट हो वीडियो. आपको उन ग्रुप्स में इनको शेयर करना है, और मैं आपके क्वेश्चंस ले रही हूँ यहाँ पे, जिसमें कि आपके मेजरली आज मेरा फोकस है, मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि अगर आपके हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हो, तो आपके घर की कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं जिसको लेके आपको ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. सो आई एम टेकिंग Rahul Bansal's question, another second question of Mr. Rahul Bansal, which is he wants to know when I get married and how will be my marriage life. राहुल जी, आपके मैरिज की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ईयर बाय लाइक मार्च अप्रैल तक आपके मैरिज के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे. बट आई फील दैट यू आर योर सेल्फ अ वेरी एग्रेसिव एंड अ वेरी short tempered and a moody person, so please do take care about your marriage life, as I already mentioned you about your career. What you do is you just make it a habit of always using a green pen with you. आप ग्रीन पेन अपनी लाइफ में यूज़ करें, और यू कैन वेयर अ ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट विच विल हेल्प यू बैलेंस योर एनर्जीज. जो कि आपकी एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा अभी हाइपर हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर आपकी एनर्जीज हो रखी हैं. और आप ज़रूर कोशिश करें कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, और मे बी यू कैन डू रेगुलर जिमिंग और वॉट एवर वे कि आप अपनी बॉडी का वर्कआउट, या अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चीज़ को अपना रेगुलर प्रैक्टिस बनाएं, विच विल रियली हेल्प यू इन बैलेंसिंग योर एनर्जीज इन योर जनरल फैमिली लाइफ. पार्थ, आई वॉन्ट टू हेल्प. यस पार्थ जी, आप अपना क्वेश्चन और प्रॉपर लिखें तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी. आप मुझे सिर्फ ये मैसेज कर रहे हैं, तो बट you have to mention your question and details. So hello, so friends, I would like you to go and like my page Holistic Hands by Dr. Shalini Gubnani. comment box में आपको इसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे जाके उस पेज को लाइक कर सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. और मैं जनरली आपको मेरे वीडियोस जो डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे. यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक भी मिलेगा.
जिसमें मैं रेगुलर ऑलमोस्ट सब नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको डिफरेंट डिफरेंट मनी रिलेटेड टिप्स, हेल्थ रिलेटेड टिप्स देती रहती हूँ. तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोज़ विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू यू नो एंड इन चेंजिंग योर लाइफ. और आपको बहुत सारे अच्छे टिप्स वहाँ पे मिलेंगे. सो नेक्स्ट आई विल कम कि अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिटी रेगुलरली फेस कर रहे हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जी फेस कर रहे हैं कि आपको हर समय आप थके थके फील करते हैं, आपको लगता है मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो उस केस में गो एंड चेक योर ईस्ट डायरेक्शन. अगर आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल योर इमोशंस. आपके जो एंगर हैं वो उसको आपको कंट्रोल करना है, एंगर वाले इमोशन को आपको रेगुलर कंट्रोल करना है. और आई विल जस्ट गिव यू अ स्विच वर्ड का फ्रेज जो आपको चैंट करना है, विच विल हेल्प यू चैनलाइज योर एनर्जीज फ्रॉम दैट जोन, विच इज बी टुगेदर क्लियर. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आप इस तरह की इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आपको बी टुगेदर क्लियर, ये आपको दिन में 108 टाइम्स आपको इसको शेयर करना है, चैंट करना है. और आप दिस विल हेल्प यू गेटिंग आउट ऑफ ऑल दीज, मतलब आपके जो इमोशनल एंगर वाला इमोशन है उससे आपको रिलीज करने में आपको ये हेल्प करेगा. जी पार्थ जी, आपका क्वेश्चन है क्या प्रेम विवाह होगा. मैम मैंने आपको पार्थ जी इस चीज़ का आंसर दिया है कि आपके मॉम पापा खुश से पर सामने से प्रॉब्लम है. सो हेल्प मी, थैंक्स. देखिए, आपको मैंने बोला कि आपको जिससे भी डिस्कशन करना है, आपके पेरेंट्स ठीक हैं, अगर सामने गर्ल के पेरेंट्स एग्री नहीं है तो वहाँ पे भी आपको अगेन वही चीज़ अप्लाई करनी है कि आपको जब भी उनसे डिस्कशन करना है या आपको जब भी उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए बात करनी है तो आपको जो मैंने आपको कलर्स मेंशन करे, आपको उन कलर्स को धारण करके जाना है. दैट विल रियली हेल्प यू. दैट इज़ अ कलर ऑफ कम्युनिकेशन. सो वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स और वेदर इट इज़ द गर्ल्स पेरेंट्स, आपको वहाँ पे उस चीज़ से आपको कम्युनिकेशन अपना क्रिएट करना है. और जो एक रेमेडी मैंने आपको बताया, दैट विल हेल्प यू इन योर गेटिंग द टर्म्स. आपके जो रिलेशनशिप के टर्म्स हैं उस चीज़ को हेल्प करने में आपकी मदद करेंगे. ओके, सो अब इसके अलावा और जो भी प्लीज़ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्लीज़ आई वुड रियली लाइक कि मैं यहाँ पे टॉप फैन और शेयरर्स के क्वेश्चन ले रही हूँ. तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स में. और इस वीडियो को आपको इस पेज को, मेरे पेज को लाइक करना है. बिकॉज देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए आती हूँ संडे को स्पेशली लाइव, इतना टाइम निकाल के आप लोग को फ्री सेशन देती हूँ. अदरवाइज इस वीडियो के अलावा अगर आप मुझे प्लीज़ मैसेज करते हो तो दीज आर ऑल पेड सर्विसेज. सो और इस समय मैं आपको लाइव आंसर्स दे रही हूँ, आपकी लाइव टैरो रीडिंग कर रही हूँ, आपके आंसर्स दे रही हूँ. तो आई ऑल्सो वॉन्ट दिस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यू कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि और लोग हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ सकें और उनके क्वेश्चंस के आंसर भी उन्हें मिल सके. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड. सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपके बैक पेन आपको फील हो रहा है, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो जस्ट गो एंड चेक कि क्या आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में कोई अंडरग्राउंड टैंक अगर है बना हुआ तो हो सकता है आपको बैक से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हो. अगर आप ऐसा है तो प्लीज़ गेट इट फिल्ड, बिकॉज उसको आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते, उसको आपको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यू कैन ऑल्सो कीप अ बॉन्जाई ऑफ पीपल ट्री, एक पीपल प्लांट का बॉन्जाई आप वहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. So I'm getting all the questions, but I would really like you all to please go and share this video if you want me to take your questions live here. मैं आपके questions का आंसर दूँ तो प्लीज़ मैं भी आप लोगों से ये चीज़ चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि आपके नाम के आगे फेसबुक जो है शेयरर का बैज दे और हम आपके क्वेश्चंस यहाँ पे ले सकें.
नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि अगर आप कोई न्यूरो रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहे हैं, आपकी तो हो सकता है आपकी किचन या स्टोर जो है वो नॉर्थ जोन में बना हुआ है। अगर आपके नॉर्थ सेक्टर में किचन या जोन है तो हो सकता है आपको कुछ न्यूरो रिलेटेड, कुछ नर्व्स रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे हो। तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इंक्रीज वाटर एलिमेंट इन दैट जोन। आप वहाँ पे एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं या कोई वाटर रिलेटेड पिक्चर लगा सकते हैं। वहाँ पे आप ब्लू कलर इंक्रीज कर सकते हैं उस जोन को आप एनहांस करने के लिए। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर करियर, इन योर वेल्थ, इन योर फाइनेंशियल अबंडेंस में भी वो जोन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं नए, मैं उन्हें बता दूं, आई एम डॉक्टर शालिनी गुगनानी। हेलो नीरू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर शालिनी गुगनानी, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। सो हेयर टुडे आई एम लाइव एंड मैं पिछले ऑलमोस्ट 5 वीक्स से संडे को इसी टाइम पे लाइव आ रही हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कि इसी टाइम मैं लॉकडाउन में मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँ। रेगुलर मेरी कोशिश है कि मैं इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं करूँ और मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँ और लाइव आके मैं आप लोग के सवालों के जवाब दूँ, आप लोग की क्वेरीज के आंसर्स दूँ और आपको नई नई चीज़ें आपको डिफरेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एनर्जीज़, अगर घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग को जानना चाहते हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को, लास्ट वीक संडे वाले वीडियो को भी मेरे पेज पे जाके या यूट्यूब लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप डिफरेंट तरह से हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आपकी कौन सी डायरेक्शन वास्तु से रिलेटेड डिस्टर्ब हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज फेस हो रहे हैं। और अगर मैं आज ये बात करूं तो आज का दिन, आज सोलर इक्लिप्स था और आई होप जो मैंने सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड आपको दान करने के लिए वीडियो डाला था और आपकी जो स्पेशल रेमेडीज़ के लिए वीडियो डाला था तो आपने वो सब चीज़ें अपने प्रॉपर टाइम पे अपने वो सब चीज़ें आपने फॉलो करी होंगी और सब चीज़ कर ली होंगी। आज एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत उस टाइम पे, उस ग्रहण के टाइम पे अगर आपने अपनी मंत्र जाप, अपनी पूजा या जो भी चीज़ें करी हैं तो आपको श्योरली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उस टाइम पे एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो हम लोग ने स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में सूर्य प्रॉब्लम दे रहा था, बिकॉज सूर्य इज़ अ प्लैनेट ऑफ, एज आई डिस्कस टोल्ड इन माई वीडियो ऑल्सो, कि सूर्य इज़ अ प्लैनेट ऑफ आर नेम, फेम, हमारी प्रसिद्धि, हमारी कीर्ति, हमारी यश, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। हमारे फोर फादर्स यानी कि हमारी जो लाइनेज है उसको डिनोट करता है, हमारे कुल की वृद्धि को डिनोट करता है। तो दिस वाज द वेरी वेरी गुड टाइम जिसमें हम अपने सूर्य प्लैनेट को, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे हॉरोस्कोप में सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है तो हमें वो चीज़ें पता कैसे चलती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में किसी एक एंगल में डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे लीगल इश्यूज जैसे मैंने बोला वो रेगुलर चल रहे हैं, हमारे मान सम्मान नहीं होता है, हमारा नेम खराब हो जाता है, हमें डीफेम हो जाते हैं हम किसी ना किसी वजह से, दैट मीन्स हमारे कोई ना कोई हाउस पे, किसी ना किसी प्लैनेट पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उन लोगों के लिए हमने आज सोलर इक्लिप्स के टाइम पे स्पेशली पूजा करी थी। और अब इसको हम आगे लूनर इक्लिप्स भी आने वाला है और जिन लोग को इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, जो मन से परेशान है, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो बिना किसी बात को लेके नेगेटिव हुए रहते हैं, आप देखोगे कि एंग्जाइटी हो जाती है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, हर समय नेगेटिव थॉट्स लिए रहते हैं, उनका मन हर समय परेशान रहता है, इतनी सी बात को भी लेके वो इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दैट मीन्स उनका मून कहीं ना कहीं डिफ्लेक्टेड होता है। तो आने वाले मून इक्लिप्स में हम उनके लिए आई विल बी शेयरिंग रेमेडीज़ एंड जो भी बेस्ट उनको उस समय मंत्र जाप करने होंगे। तो आप उस समय आप रेगुलर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, सो दैट कि आप उस चीज़ को, जिन्होंने इस सोलर इक्लिप्स वाली चीज़ें मिस करी है तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, आप लूनर इक्लिप्स आने वाला है नेक्स्ट 5 जुलाई को, आप उसे मिस नहीं करें। आज एक और बहुत अच्छा दिन है, फादर्स डे भी है। तो अगर हम देखें तो फादर्स डे भी, तो सबसे पहले तो मैं जितने भी फादर्स यहाँ पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा मैं
मुबारकबाद दूंगी, और मैं अपने फादर को हैप्पी फादर्स डे विश करूंगी, विच इज़ ही इज़ नॉट एनी मोर नाउ, और जो भी मेरे फादर स्वरूप है मैं उन सबको हैप्पी फादर्स डे विश कर रही हूँ यहाँ पे। और बिकॉज आज अगर सोलर इक्लिप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण की बात, तो सूर्य भी क्या है, सूर्य भी हमारा एक फादर को डिनोट करता है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज आज मैंने सुबह पढ़ा कि लाइक इट्स सच अ ब्लेसिंग कि आज सूर्य के मेन डे के टाइम पे ही फादर्स डे भी आया है, कि सूर्य भी हमारे फादर को डिनोट करता है, हमारे फादर से रिलेटेड हमारी जितनी भी उसका प्रतीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। और आज योग डे भी, आज योगा दिवस भी मनाया जाता है, तो हमारी हेल्थ को लेके भी एक बहुत अच्छा डे है। सो आई विश ऑल ऑफ यू फॉर दिस हैप्पी योगा डे एंड फादर्स डे। सो आगे हम चलते हैं, और किसके सवाल हैं और किन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, सो दैट आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस। रुचिका मेहंदी रत्ता, आई वांट टू नो हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ, प्लीज टेल हाउ विल बी माई लव मैरिज। ऑब्स्टेकल्स तो नहीं होंगे? आई थिंक आपके सवाल से मैं ये समझ पा रही हूँ, आपने लिखा पहले कि हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ, हाउ विल बी माई लव मैरिज। दैट मीन्स अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप लव मैरिज के लिए बात कर रहे हैं। सो व्हाट यू वांट टू नो, ऑब्स्टेकल्स तो नहीं होंगे, ओके कि आपकी लव मैरिज में ऑब्स्टेकल्स तो नहीं होंगे। रुचिका, आई डोंट सी एनी ऑब्स्टेकल्स इन योर मैरिज। सो इट इज़ अ इमोशनल कार्ड, आपके इमोशंस का, एक रिलेशनशिप का, एक लव का कार्ड आया है। सो दिस इंडिकेट्स अ मैरिज का ही कार्ड है। सो आई होप आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। हाय सुकृति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल कॉमेंट। So who else? It's my dad's birthday too. So wish you very very happy birthday for your dad, Ruchika ji, and happy Father's Day too. Yes. Sukriti, your career growth. Okay. 20. Sorry, where's my diary? 23rd of May 1986. Sukriti, you want to know about your career growth? I will suggest you to '86. I don't see much issues in your career growth, but I will just suggest you to आप डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को या क्रोज को रेगुलरली दूध में भिगो के रोटी या ब्रेड खिलाएं, विच विल हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ। एंड डू वियर समथिंग इन वुडन, आप एक वुडन का ब्रेसलेट पहने, या वुडन या तुलसी माला का ब्रेसलेट या रुद्राक्ष, कुछ भी इस तरह का आप इसको पहने। दिस विल रियली हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ। Thanks Ruchika, thank you so much. So who is our next sharer? Thanks Niruji, thank you so much for your love and blessings. Ruchika, thanks for following Ruchika. So who is next, which जिनका हमें सवाल लेना है, who is our next sharer and a top fan? सो और आप जो लोग चाहते हैं मैं आपका सवाल लूँ, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ऑन 5 और मोर ग्रुप्स कि मैं आपके सवाल ले सकूँ। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, और अगर आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई अंडरग्राउंड टैंक है, कोई वाटर टैंक है अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो प्लीज़ डू गेट इट फिल्ड।
and also use a tiger eye rocks in that side which will help you गेट बेनिफिट्स. और ये अगर वहाँ पे ऐसा है तो हाई बीपी के साथ साथ आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी ये बहुत ज़्यादा देता है. तो आपको ये जोन को बेटर रखना भी बहुत ज़रूरी है अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को भी कम करने के लिए, आपकी सेविंग्स को, बेसिकली आपका जो एक फाइनेंशियल का फ्लो है फाइनेंसिस का, वो उसे रोकता है. सो हु इज़ आवर नेक्स्ट शेयरर? मैं किसका सवाल ले सकती हूँ? शेयरर एंड अ टॉप फैन. हाय देबशीष, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो प्रिवंश जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल फॉर बीइंग हेयर. सो अगला मैं बात करूँ, अगर आप हार्मोनल इश्यूज फेस कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी फैमिली में किसी को हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आपके लोअर लेग्स में प्रॉब्लम आपको होती है, स्पेशली अगर फीमेल्स की हेल्थ अगर मैं कहूँ घर में डिस्टर्ब होती जा रही है, तो आपको देखना है कि आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है वहाँ पे सेप्टिक टैंक हो. अगर ऐसा है तो आपको वहाँ पे कैम्फर क्रिस्टल्स, खास करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कैम्फर क्रिस्टल्स रेगुलरली यूज़ करने हैं, और आपको वहाँ पे रेड रॉक, कोरल रॉक्स जो है वो आपको डिग करनी है. तो उससे आप इस चीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं. सो हेलो मंगजी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हेयर. So who is our next sharer and a top fan so that I can take your question? I am here for another 10 minutes. So whoever wants their questions to be answered, so please do share this video. सो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, मैंने आपको डिफरेंट आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताया कि अगर आप इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो आपके घर के पर्टिकुलर कौन से डायरेक्शंस आपके अफेक्टेड हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. तो जैसे हम आज सूर्य एक्लिप्स की बात कर रहे थे, हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे थे, तो सूर्य जो है वो हमारे ईस्ट डायरेक्शन को भी डिनोट करता है, हमारे ईस्ट, घर के ईस्ट को, यानी कि हमारा जो सोशल कनेक्शंस है, हमारे नेम मतलब जहाँ से हमें बेसिकली एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शंस, हमारी लाइनेज बढ़नी है, हमारा जो हमारे कुल की वृद्धि होनी है, वो सब हमारी ईस्ट डायरेक्शन से होती है. तो आप अपने ईस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वहाँ पे आप वहाँ पे ब्रास का सूर्य भी आप लगा सकते हो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में. So who is our next sharer so that I can take their questions? So I'm just here for maximum 10 minutes, maybe less than that. Hi Suman ji, thanks for watching. So for next questions, next जिनके और questions आ रहे हैं और जो next sharer है, so I'll be giving you a wealth direction for them. मैं उनके लिए आज एक उनकी wealth direction देने वाली हूँ अभी कि I am wearing one in neck. You want to say कि तुलसी की माला, that's very good अगर आपने पहनी हुई है, बट अगर आप हाथ में भी उसको पहनेंगे तो उसका और ज़्यादा, लेफ्ट हैंड में स्पेशली, तो आपको और ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे. सो अब नेक्स्ट और जो लोग भी अगले 10 मिनट में सवाल करेंगे और नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो शेयरर होंगे, मैं उनको एक उनकी वेल्थ डायरेक्शन बताऊंगी कि उनके लिए एक लकी डायरेक्शन, जो कि वो अगर अपना कुछ भी काम करने में अपनी उससे उनको वेल्थ और कनेक्शंस के लिए, खासकर उनकी एक करियर ग्रोथ के लिए उनके लिए कौन सी बेस्ट डायरेक्शन होगी, वो अब हम इस चीज़ को लेंगे. So this is Arvind Gaur. Arvind Gaur is, आपका डेट ऑफ बर्थ है एडवोकेट अरविंद गौर, 6th of June 1973. टेल मी अबाउट माई सन्स फ्यूचर. सर अगर आपको अपने सन का फ्यूचर जानना है तो आपको उनका आपके सन का डेट ऑफ बर्थ देना होगा, नॉट योर. आई एम नॉट सीइंग हॉरोस्कोप हेयर. मैं आप यहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी से आपके नेम्स देख रही हूँ. आप प्लीज़ अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ दे. रुचि नेगी, मैम प्लीज़ मुझे भी बता दो.
1995 बेबी का योग एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम. रुचि जी, आई ओके, देयर इज योर डेट ऑफ बर्थ 1st of July 1995. 1st of July 1995. आपका बेबी का योग और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. आपकी, अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की पहले बात करूं तो आपको अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करें और वहाँ पे कैम्फर रेगुलरली आप जलाएं अपने घर के, और वहाँ पे आप एक मनी प्लांट लगाएं. घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जस्ट प्लेस अ मनी प्लांट. और अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन भी ज़रूर चेक करें. आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कोई येलो या रेड कलर से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप प्लीज़ उसे क्लियर करें और वहाँ पे लाइटर टोन्स आप लगाएं. और रही बात आपके बेबी इशू की, तो आई सी योर बेबी के योग नेक्स्ट ईयर में कहीं पे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं. बट फॉर स्पेशली फॉर बेबी दिस नीड्स अ डिटेल्ड रीडिंग. अभी बेसिकली मुझे इस तरह के योग नेक्स्ट ईयर मिड में बनते हुए नज़र आ रहे हैं. बट दिस, एज आई टोल्ड, दिस नीड्स अ डिटेल्ड रीडिंग, सो इट विल बी बेटर इफ़ यू कॉन्टैक्ट फॉर अ डिटेल्ड एनालिसिस फॉर दिस क्वेरी ऑफ योर्स. Umang ji have shared. Thank you so much, Umang ji. I've seen your sharer batch that you've shared. Debashish, your question is son's date of birth is 4th of March 2002. Any predictions for him? It will be better if you give me a particular question what you want to ask for him. But in general, if you just want a prediction guidance, then सबसे पहले तो you need to be careful about his health. He really need to be cautious about his health concerns. That is more a cause. And अगर जनरल प्रिडिक्शंस की बात कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव चाइल्ड है, तो थोड़ा सा उसको एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केयर की ज़रूरत है. तो उसका हेल्थ इश्यूज़ को आप खासकर ध्यान रखें. So last 5 minutes, my date of, you told me that I can go with business, so please suggest which business I can start with, or there is any problem in my job. Rahul ji, I cannot give you the list of businesses. You have to ask me what sort of business options you have in your mind, then I can choose a business option for you. मैंने आपके लिए business का वो कहा है. बट येस, आपने मेरे से सवाल किया था कि आप के लिए बिजनेस बेटर है या जॉब. बट इफ़ यू रियली वांट टू कंटिन्यू विद योर जॉब, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर ये कहूँ कि वहाँ पे आप अपनी एक्चुअली ड्यूटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके थोड़ा सा इशू में है, तो शायद इस वजह से आप उस जॉब को चेंज करना चाहते हैं. थोड़ा सा उसी वजह से आपको मेजरली अपने सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है. दैट्स वाई ओनली आई सजेस्टेड यू टू गो इनटू अ बिजनेस, बिकॉज आपका बिजनेस से रिलेटेड नंबर्स हैं. आप इजीली किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकते हो. आप इट्स नॉट ईजी फॉर यू, आपके लिए शायद. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप अपने उसमें नहीं है, तो दैट मीन्स श्योरली आपका सूर्य कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है. रुचि, थैंक यू सो मच. थैंक्स रुचि जी. ओके, संगीता जी, 30th of October 1964, your work. 30th of October. 30th of October 1964. Sangeeta ji, you want to know about your work. आप संगीता जी कुछ दो चीज़ों को लेके अभी बहुत ज़्यादा उसमें है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं. आपको बहुत अपनी ही एक रिलेशन में, अपनी ही एक अंदर
बिकॉज योर पर्सनैलिटी एंड योर डेस्टिनी आर टोटली डिफरेंट. तो आपको उन चीज़ों में एक जो तालमेल बना के बैठना होता है वो आपके लिए ज़्यादा इस समय कॉज ऑफ वरी हो रहा है. बट इन जनरल अगर मैं वर्क की बात करूँ तो आप वर्क इज़ फाइन. आप वर्क जो कर रहे हैं आप बिल्कुल अच्छे से उसको कर सकते हैं. बट जो मेजर जो आपके साथ इश्यूज हैं वो यही हैं कि आपका अपना जो पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर है वो दोनों आपस में एंटी हैं. तो जिसकी वजह से आपका एक इंटरनल आपके अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चला रहता है. आप अंदर ही अंदर परेशान रहती हैं. तो उस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर मैं आपको ये कहूँ तो आप प्लीज़ एमेथिस्ट अपने पास रेगुलरली यूज़ करें. और एक ग्रीन प्लांट्स के साथ आप ज़रूर अपने आप को रेगुलरली आप ग्रीन प्लांट्स के साथ खुद से ग्रीन प्लांट्स में या मिट्टी से आप उसको नर्चर करें. हो सके तो आप नंगे पैर ग्रीन ग्रास पे घूमें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा. हेलो सुनील जी, थैंक यू सो मच. हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो अभी ओके बॉबी गुलाटी. ओके बॉबी, हाय, कैसे हो आप? हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन? सो दिस इज फॉर योर सन आई सपोज 22nd February 2002. So lots of all twos wants to do physics honors from DU. For him first for your child, for your son, I would first of all want to say कि उसके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है. आप उसे कहें रेगुलरली सूर्य को जल चढ़ाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके हाथ में रेड कलर का आप धागा या रेड जैस्पर का ब्रेसलेट ज़रूर पहना के रखें. वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल बच्चा है, बहुत ओवर सेंसिटिव है. तो कई बार वो ना अपने ओवर इमोशंस की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड भी हो सकता है और उसकी वजह से वो बहुत इनडिसेसिव भी हो जाता है कई बार किसी चीज़ों को. बट अगर फिजिक्स की बात करें तो येस ही कैन डू बिकॉज उसका क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा है. अगर वो करना चाहता है तो येस ही कैन श्योरली डू. बट इट विल बी मोर बेटर if we go for some law related or some that accounts related field और कुछ skill से related अगर field में वो जाता है that will be more beneficial for him. But I would really suggest you कि आप उन्हें रेड जैस्पर का ब्रेसलेट या टाइगर्स आई का ब्रेसलेट ज़रूर पहनाएं which will be really helpful for his emotional imbalance. और सूर्य को जल ज़रूर दें वो. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट टेक वन मोर लास्ट क्वेश्चन. हु इज़ आवर नेक्स्ट शेयरर? उससे पहले मैं एक बार आपको ये बता दूं जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, आई एम डॉक्टर शालिनी गुगनानी एंड जिन्होंने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया है सो आपके इसमें कमेंट बॉक्सेस में इस पेज को लाइक करने के लिंक्स हैं. सो प्रियंका इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट इन दिस और प्रियंका इज़ पुटिंग मैसेजेस. आप प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में उसमें आप इस पेज के लिंक को लाइक कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को, इसमें यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया गया है, उसे प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड यू कैन सो दैट कि और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें. सो इवन यू कैन जस्ट गो टू माय यूट्यूब एंड सी देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस विच कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. बहुत सारे रेगुलर टिप्स उसमें मैं डालती रहती हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जो कि आप को वहाँ पे मिल सकते हैं. सो आई विल बी जस्ट टेकिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो हु इज़ द नेक्स्ट शेयरर एंड अ टॉप फैन? सो उन्हीं का मैं क्वेश्चन लूँगी. हाय मनु, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हाउ आर यू एंड हाउ इज़ ऑस्ट्रेलिया ट्रीटिंग यू एट दिस टाइम ऑफ पैंडमिक? हेलो अजय जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स संगीता जी, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन. आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, मेरा एक्नॉलेज करते हो, मेरे आंसर्स को अप्रिशिएट करते हो तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हर हफ्ते फिर दोबारा हिम्मत करके लाइव आना. बिकॉज आप लोग के मैसेजेस मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं एटलीस्ट आप लोग की लाइफ में कुछ चेंज ला पा रही हूँ. मैं इस लाइव सेशंस के दौरान जितना भी क्वेश्चंस आप लोग के दे पा रही हूँ, आपको आंसर दे पा रही हूँ, आपको डिफरेंट टिप्स देती हूँ, डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ. तो दैट्स रियली मोटिवेटिंग. आप लोगों की जितनी
ये एक एक्नॉलेजमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है. सो थैंक यू सो मच. It's almost 1 hour and we will be closing this. I'll just have a look once more. कोई और शेयरर या टॉप फैन है तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूँगी, अदरवाइज आई एम जस्ट डन फॉर टुडे. So today I have shared with you lots of health issues जो स्पेशली बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या जनरल न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि आपको हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो आपको घर के अपने कौन सी डायरेक्शन को चेक करना है और वहाँ पे क्या क्या रेमेडीज़ करने हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं. हाय शालू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Okay, so I'll just take last question, which is Neeraj Sharma. Neeraj Sharma is 1st of April 1989. I am in a job and doing fine. I want to try food processing business. Okay, so I'll just check whether you should switch over from your job or not. 1989. नीरज जी, आप किस जॉब में हैं, किस फील्ड की जॉब में, अगर आप मुझे मेंशन कर पाए तो. ओके, आई थिंक यू आर नॉट देयर. सो फॉर योर बिजनेस आई वुड से कि आप अभी अपनी जिस जॉब में हैं, इफ़ यू आर डूइंग फाइन, डोंट take a chance. abhi this is not the right time for you to take a chance for your food processing this thing. So it's better if you are fine and safe in your job, so be there and be happy. So thank you so much everyone for being here with me, and so next Sunday again I'll surely be there with on my this live session, and will give you more tips, more remedies, and will answer more your questions. So thank you so much.